وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لائے تو منافقین ان کی پیروی کرنے کے بجائے انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ جب منافقین سے کہا جاتا کہ وہ بھی ایمان لائیں جیسے سچے مومنین ایمان لائے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بے وقوف کہتے تھے جو دل کی گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ منافقین خود کو عقل مند اور باشعور سمجھتے تھے، جبکہ حقیقی مومنین کو وہ بے وقوف قرار دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دراصل یہی لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ حق کو نہیں پہچانتے اور ان کی عقلیں گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ایک واقعہ جس سے یہ آیت واضح ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ لوگ سچے ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ دین کو اپناتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے کمزور اور بے وقوف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت اور غرور کو بے نقاب کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے تکبر اور باطنی جھوٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام اور دیگر مسلمان ایمان لائے، تو وہ تنزیہ طور پر کہتے، یعنی کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہاں منافقین صحابہ کرام اور حقیقی ایمان والوں کو کم عقل اور ناسمجھ قرار دیتے تھے، حالانکہ اصل عقل اور دانش انہی کے پاس تھی جو اللہ کی ہدایت پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا، خبردار، حقیقت میں وہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ منافقین اپنی ظاہری عقل مندی اور دنیاوی فہم پر غرور کرتے تھے، حالانکہ ایمان کی روشنی سے دوری نے ان کی حقیقت میں سفاہت ظاہر کر دی تھی۔ یہ تفسیر ان کے دل کے اندھیروں کو واضح کرتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری دنیاوی عقل کے مقابلے میں ایمان اور اللہ کی ہدایت اصل فہم ہے۔ حکمت۔ اس آیت میں یہ حکمت چھپی ہے کہ ایمان کی دولت اصل دانش اور فہم کی علامت ہے، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں وہ حقیقت میں بے وقوف ہیں، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی ذہین یا کامیاب کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل نجات اور دانش ایمان کی پیروی میں ہے۔ قدرت۔ اللہ کی قدرت یہاں اس بات میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ظاہری اعمال بلکہ انسان کے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ منافقین ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کیا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ منافقین کی حقیقت کا انکشاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے دل کے اندر موجود کفر اور جھوٹ کو بے نقاب کیا اور ان کے تکبر کو ظاہر کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت۔ منافقین نے ایمان لانے والے حقیقی مسلمانوں کو بے وقوف قرار دیا، حالانکہ حقیقت میں وہی لوگ دانشمند تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا۔ ایمان کی اصل اہمیت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی علم اور فہم کچھ نہیں ہے اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود نہ ہو۔ اصل عقل اور دانش وہی ہے جو اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرے۔ منافقت کی مذمت۔
मुनाफिकत को इस आयत में सख्ती से रद्द किया गया है और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ करार दिया गया है जो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन दिल में ईमान नहीं रखते। अल्लाह का इल्म और कुदरत, अल्लाह ताला हर इंसान के दिल के हाल को जानते हैं और मुनाफिकीन की छुपी हुई हकीकत को जाहिर करने वाला है। ज़ाहिरी दैवों की हकीकत अल्लाह से पोशीदा नहीं रह सकती। दीन का मजाक उड़ाने वाले लोग आज भी बाज़ लोग दीन पर चलने वालों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पुराने ख्यालात का हामिल या कदामत पसंद कहते हैं, हालांकि वो खुद असल में अल्लाह की हिदायत से दूर होते हैं और इस बात का शूर नहीं रखते कि ईमान और नेकी ही असल कामयाबी का रास्ता है। मगरिबी तर्ज ज़िंदगी की पैरवी करने वाले कुछ लोग मगरबी तर्ज ज़िंदगी को कामयाबी और खुशी का मेयार समझते हैं और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को कदीम और गैर ज़रूरी समझते हैं। वो दीन पर चलने वालों को सिफाहत या बेवकूफ़ी से ताबीर करते हैं, हालांकि असल बेवकूफ़ी व खुद कर रहे होते हैं जो अपनी आखिरत को नज़रअंदाज करते हैं। धोखा देने वाले कारोबारी अफराद कुछ कारोबारी लोग अपने फ़ायदे के लिए धोखा देते हैं और जो लोग ईमानदारी और दियानतदारी के साथ कारोबार करते हैं उन्हें नासमझ करार देते हैं। वो समझते हैं कि झूठ और धोखाबाजी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, हालांकि वो अपने आमाल से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माल व दौलत पर गुरूर करने वाले ऐसे लोग जो दुनियावी माल व दौलत और मकाम पर फ़ख्र करते हैं ईमान वालों को कमतर समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो ज़िंदगी की हकीकत से नावाकिफ़ हैं, हालांकि हकीकत में वही लोग माल व दौलत की हकीकत को समझने से कासिर होते हैं। तालीम याफ्ता मगर दीन से दूर लोग कुछ अफराद जो आली तालीम याफ्ता होते हैं खुद को अक्लमंद समझते हैं और दीन पर चलने वालों को कमतर समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि जदीद इल्म के होते हुए दीन की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इल्म का असल मकसद इंसान को अल्लाह की मारिफ तक पहुंचाना है। ये मिसालें हमें समझाती हैं कि कैसे आज भी कुछ लोग दीनदारों को बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि हकीकत में वही हैं। लोग खुद नुकसान उठा रहे होते हैं। आज के दौर में भी हमें ऐसे अफराद मिलते हैं जो दीन और ईमान को फरसूदा और गैर ज़रूरी समझते हैं। वो दुनियावी कामयाबी को ही मेयार मानते हैं और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो दीन के अहकाम पर अमल करते हैं। ये आयत इन लोगों के रवैये की अक्कासी करती है जो मादी दुनिया को सब कुछ समझते हैं और दीन के पैरोकारों को नासमझ या बेवकूफ़ गर्दानते हैं, हालांकि हकीकत में यही लोग खुद हकीकी फ़हम और बसीरत से दूर हैं। इस आयत का ताल्लुक़ आज की ज़िंदगी में ऐसे लोगों से है जो हैं मगरबी तहज़ीब या जदीद दुनियावी उलूम के फ़ख्र में दीन की हिदायत को तर्क कर देते हैं, और जो लोग इखलास और सच्चाई के साथ दीन पर अमल करते हैं उन्हें नासमझ या पिसमानदा करार देते हैं। ईमान की अहमियत। हमें यह सबक मिलता है कि ईमान की रोशनी असल दानिश और फहम है, और जो लोग दीन से दूर हैं वो हकीकी मानों में नुकसान में हैं, चाहे वो दुनियावी लिहाज से कितने ही कामयाब क्यों ना हों। मुनाफिकत से बचने की ज़रूरत। मुनाफिकीन के रवैये को समझकर हमें सीखना चाहिए कि अपने ईमान और नीयत में सच्चाई और इखलास को अपनाएं और ज़ाहिरी दुनियावी इल्म पर फ़ख्र करने के बजाय अल्लाह की हिदायत को तरजीह दें। अल्लाह की हिदायत कबूल करना। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह की हिदायत को कबूल करने वाले असल दानिशमंद हैं, चाहे दुनिया उन्हें किसी और नज़र से देखे। ईमान लाने वाले कभी बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि असल बेवकूफ़ वह हैं जो दीन से दूर हैं। अक्ल और फ़हम का सही इस्तेमाल। ये आयत हमें अक्ल और फ़हम को सही इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। जो लोग ईमान को छोड़कर दुनियावी कामयाबी के पीछे भागते हैं वो असल नुकसान में हैं।
या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानने वाला है, हमारे दिलों को सच्चे ईमान से मुनव्वर फरमा। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी हिदायत को दिल की गहराइयों से कबूल करते हैं और इसे अपनी जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। ए रब्बल आलमीन, हमें इस दुनिया के फरीब और गुरूर से महफूज रख और हमें उस फहम और फरास्त से नवाज जो सिर्फ तेरी तरफ से आती है। हमारे दिलों में जुहूट और मुनाफिकत को जगह ना दे, बल्कि हमें इखलास के साथ तेरे दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। या रब, अगर हम लाशूरी में हक से दूर हैं तो हमें इसका शऊर अता कर और हमारी अक्लों को सही रास्ते की तरफ मोड़ दे। हमें दुनियावी तकब्बुर और गुरूर से बचा और हमें हकीकी दानिश की दौलत अता कर। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनका ईमान और अमल तेरे नज़दीक पसंदीदा हो, और हमें उन मुनाफिकीन से दूर रख जो तेरी रोशनी को झुठलाते हैं। आमीन।